اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں آج اس خوبصورت ٹائم کے لیے، اس عبادت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو خداوند کے کلام کو سننے کے لیے یہاں موجود ہے۔ میں خداوند کے خادم جناب پادری محبوب صاحب کا اور ان کی ساری کابینہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج یہ ممکن ہوا کہ ہم آپ تک پہنچ سکیں۔ میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں، بھائی نکسن ہمارے ساتھ ہیں، بھائی ایڈون اور ان کا بیٹا، اور خداوند نے فضل کیا کہ یہ مجھے لندن سے یہاں تک لے کر آئے تاکہ خداوند کے کلام کی خدمت کی جا سکے۔ کتاب مقدس کو کھولیں گے، لیکن اس سے پہلے کتاب مقدس کو کھولے بھائی صاحب نے جیسے کہا کوئی لمبا تعارف نہیں ہے، لیکن میں مختصر کچھ اپنی منسٹری کی بابت آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے فوراً بعد خدا کے کلام کو شروع کروں گا۔ ہمارا چرچ جو ہے جیسے اس بکلیٹ کے اوپر بھی لکھا ہے، یہ ٹینٹ چرچ ہے۔ ہمارا چرچ پاکستان کے اندر ٹینٹ چرچ ہے۔ ٹینٹ چرچ جو ہے یہ چرچ وداؤٹ والز ہے، لیکن بٹ ود مشن۔ یہ بغیر دیواروں کے چرچ ہے، اور اس وقت اس کی جو اسٹرینتھ ہے پورے پاکستان میں وہ تقریباً 6000 کے لگ بھگ ہے، اور جو ہماری ریگولر ورشپ ہوتی ہے یہ ٹینٹ کے اندر ہوتی ہے، اور اس ٹینٹ کے اندر تقریباً 2000 لوگ جو ہیں وہ ہر اتوار عبادت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ خدا ان کا شکر ہے، خدا ان کا اس بات کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جو پورا چرچ ہے، ہول چرچ ہے، اس کے اندر 25 پاسٹر جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا باقی جو سٹاف ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اور یہ تقریباً سارے مل کر ایک بہت اچھی ہماری ٹیم ہے۔ اور یہ ساری کی ساری ٹیم جو ہے، میں صرف آپ کو یہاں 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری ٹیم جو ہے یہ کسی چرچ کی محتاج نہیں ہوئی۔ یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ چرچز جو ہے اس وقت تک کام نہیں کرتے جب تک انہیں کسی دوسرے چرچ سے سپورٹ نہ ہو یا کسی دوسرے ملک سے سپورٹ نہ ہو، لیکن چرچ آف پینٹیکوسٹ جو ٹینٹ چرچ ہے یہ سیلف سپورٹ چرچ ہے، اور سیلف سپورٹ ہوتے ہوئے ہم نے اس وقت اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے چرچ جو ہے گرو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ چرچ نے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک ٹریڈیشن قائم کی ہے، اور یہ اچھی نیوز یہ ہے کہ جو غریب اور یتیم بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی جہیز کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، چرچ آف پینٹیکوسٹ ان کی اجتماعی شادیاں کروا رہا ہے، اور 2 سال کے اندر 32 شادیاں ہم نے اب تک کروائی ہیں، جن کو فل جہیز دیا، ہم نے جہیز دی ہے، اور جہیز کے علاوہ ریسیپشن مکمل جو ہے وہ دی ہے۔ اگر آپ ان شادیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ آپ یوٹیوب پہ ان کے سارے کلپس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم پاکستان کے اندر اس کام کو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر خداوند نے فضل کیا، ہم بہت سے مختلف ویلفیئر کے پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پشاور شہر کے اندر جو یہ بڑا سانحہ ہوا، اور اس سانحہ کے بعد چرچ آف پینٹیکوسٹ لاہور سے جا کے ہم نے ان بچوں کو جن کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کو فلی اسپانسر کیا ہے، تاکہ وہ 5 سال کے لیے انہیں اسپانسر کیا ہے تاکہ وہ اپنی 5 سال تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکے، اور ان کے گھروں کے کرائے اور ان کے سکول کے اخراجات چرچ آف پینٹیکوسٹ جو ہے یہ کینیڈین کرسچن ایسوسیشن اور ریڈ شال کے ساتھ مل کر برداشت کر رہا ہے، اور یہ خداوند کا شکر ہے کہ اس کام کو بھی ہم وہاں پر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کافی ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ صرف خداوند کا فضل ہے۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہمارا فوکس ہوتا ہے چرچز کا، منسٹریز کا پاکستان کے اندر کہ کسی طریقے سے بیرونی ہیلپ ہو تب ہم کام کریں گے، لیکن خداوند نے یہ فضل کیا کہ پاکستان کے اندر اتنا کچھ ہے
कि हम काम कर रहे हैं और खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। ये आपके लिए इंकरेजमेंट है, ये आपके लिए इंकरेजमेंट है। कई मरतबा हम हाथ ही फैलाते रहते हैं, निक्सन भाई, कई मरतबा हम हाथ ही फैलाते रहते हैं कि दोगे दे होएगा, लेकिन ये खुदावंद का फजल है। पाकिस्तान के अंदर मैं सिर्फ ये इंकरेजमेंट इसलिए आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर खुदा ने बड़ी बरकत रखी है, बड़ी बरकत रखी है, और ये इतना फजल उसका है कि मैं आपको बता रहा हूं कि 25 पास्टर है जिनको हम सैलरी दे रहे हैं चर्च के अंदर से, और ये सिर्फ लोकल चर्च दे रहा है। जो हमारा टेंट चर्च है उसने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है और खुदा के फजल से ये काम हो रहा है। किताब मुकद्दस को अपने लिए खोलेंगे और आज जो हमारे लिए हवाला है वो है इब्रानियों की किताब से, इब्रानियों के खत से हमारे लिए हवाला है, और इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब और उसकी 7वीं आयत। माइक मुझे कोई और मिल जाएगा, कोई ऐसा माइक मिल जाएगा कि मैं मेरे तक वो पहुंच जाए, है या नहीं है तो भी ठीक है, चल रहने दे फिर, ठीक है। अब बैठे कलाम सुने, कोई बात नहीं, मैं गुजारा कर लूंगा। पाकिस्तान के तो चंगा चंगा गुजारा हो जाता है, वहां तो जनाब लाइट भी नहीं होती, उनकी लाइट और जल्दी शोर पा लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा मसला नहीं है। किताब मुकद्दस को खोलेंगे मेरे साथ, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है आइए खोलिए। नहीं ठीक है, छोड़ दे, मुझे तरीका इसका आ गया कि कितने रखना है। तो पाकिस्तान के अंदर भी कई मरतबा ऐसे हो जाता है कि वो माइक में मुंह नाल ही लगना पड़ता है, कोई गल नहीं। किताब मुकद्दस को खोलेंगे और इब्रानियों का सहीफा अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए, इब्रानियों का उसका 13वां बाब है और उसकी 7वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और फिर आगे हम पढ़ेंगे। मुझे आज कहा गया कि आज इस आयत पर खुदा के कलाम को सुनाना है। मैं याद रहे मैं स्टक नहीं हो सकूंगा भाई, जो कि आप मीडिया वाले हैं तो कोशिश कर ले इसको। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत दे। बुलंद आवाज से कह सकेंगे आमीन, आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु आज कल बल्कि, उर्दू की समझ आ रही है ना सबको? मेरा ईमान है कि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद यीशु आज कल और अब तक कैसा है? यकसा है। और बाइबल मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह एक जैसा है, उसमें किसी किस्म की कोई रद्दो बदल नहीं है, उसके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं है। वो जो कहता है वो करता है, वो अपने कौल और फेल में जरा भी तजाद नहीं रखता। लेकिन बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। हकीकत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह है क्या चीज, उसकी शख्सियत क्या है? किताब मुकद्दस का फरमान है कि जिस दिन जब्राइल फरिश्ता मरियम सदीका के पास आता है तो मरियम मुकद्दसा को आकर जब्राइल फरिश्ता कहता है तेरे बेटा होगा। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है मरियम मुकद्दसा कहती है मेरे बेटा कैसे पैदा होगा, लेकिन जब्राइल फरिश्ता कहता है तेरे क्या होगा? जितने अशर्स हैं, ये बेटियां जो अशर्स हैं और सारे नौजवान जितने अशर हैं, मेरी आवाज आराम से सुनिए ताकि हम कलाम को सीख सके। बच्चे अपना काम करने दे बच्चों को, आप सिर्फ कलाम सुने। लिखा है कि फरिश्ता आकर कहता है तू उसका नाम बुलंद आवाज से, और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जो यीशु नाम लेगा निजात पाएगा। थैंक यू वेरी मच। ऊंची बोलोगे हालेलुया, मेरे में ठंड पड़ेगी। पाबंदी तो नहीं है हालेलुया के, अगर हालेलुया पर पाबंदी है तो आसमान पर आपको कहना पड़ेगा प्रैक्टिस करें नीचे। तो उसका नाम तो उसका नाम यीशु रखना। ये जब्राइल फरिश्ता आगे कह रहा है कि तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम इसलिए रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, ये चलेगा, ये ठीक है, काफी बेहतर है। थैंक यू। तू उसका नाम क्या रखना? थैंक यू वेरी मच, बट ये बेहतर है।
تو اس کا نام کیا رکھنا؟ میرے ساتھ رہیے، یہ مجھے عادت ہے کہ میں اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. تو اس کا نام یسوع رکھنا. یہ پتہ کیوں عادت ہے مجھے؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اکیلا بھائی سے برکت ہوں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے بائبل کا پڑھنے والا اور اس پر وہ کیا ہے؟ تو آپ سننے والے بھی ہیں اور بولنے والے بھی ہیں. تو ہم پڑھیں گے زبان سے، ڈبل بلیسنگ لینا چاہتے ہیں نا سر، سنیں نا پڑھیں بھی ساتھ. جب آپ سنیں گے اور پڑھیں گے ڈبل بلیسنگ ہو جائے گی، دوہری برکت مل جائے گی، ڈبل پورشن مل جائے گا. تو آپ ڈبل بلیسنگ لے کر جائیے، صرف سننے والے نہ بنے بلکہ سنانے والے بھی بن جائیں. بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی بابت جبرائیل فرشتہ آ کے مریم صدیقہ سے کہتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور جب تو اس کا نام یسوع رکھے گی تو اس کا مطلب ہے وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. جبرائیل فرشتہ جب آ کر مریم صدیقہ سے کہتا تو اس کا نام یسوع رکھنا. یسوع نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بائبل بیان کرتی ہے کہ بہت سے نام ہیں جو نبیوں کو دیے گئے ہیں، پیغمبروں کو دیے گئے ہیں، رسولوں کو دیے گئے ہیں، اولیاء کو دیے گئے ہیں، بڑے بڑے مدبرین کو دیے گئے ہیں. بہت لوگوں کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ جبرائیل فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا. کیوں یسوع رکھنا؟ اس کی وجہ بیان کی گئی. ہر نام کی خدا کے حضور وجہ ہے. نام رکھنے کی وجہ تسمیہ ہے. کیوں؟ ریزن کیا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا؟ آگے وجہ بیان کی ہے کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یسوع نام کا مطلب ہے گناہوں سے چھٹکارا دینے والا، گناہوں سے رہائی دینے والا، مکتی دینے والا، نجات دینے والا، سالویشن دینے والا. تو اس کا نام یسوع رکھنا. اور پھر بائبل بیان کرتی ہے کہ جب اس کا نام یسوع رکھ دیا گیا، جب وہ دنیا میں آ گیا تو کتاب مقدس کے اندر لکھے وہ دنیا میں آیا. اور دنیا میں جیسے وہ دنیا کے اندر آپ آتے ہیں تو کتاب مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ اس کی بابت رسول بیان کرتے ہیں. رسول بیان کرتے ہیں کہ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام، ایک ہی نام بخشا گیا ہے اور وہ نام یسوع نام ہے. اس کا مطلب ہے یسوع نام یا یسوع مسیح کی شخصیت بخشی گئی ہے. یسوع مسیح نام ہمیں بخشا گیا ہے. یسوع مسیح کی شخصیت ہمیں بخشی گئی ہے. بخشش وہ ہے جو ہماری اوقات کے اندر نہ ہو اور ہمیں مل جائے، اسے بخشش کہتے ہیں. اور اس کا دوسرا نام فضل ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، میں ساتھ رہی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خدا نے یسوع مسیح بخش دیا، خدا نے یسوع مسیح دے دیا، خدا نے یسوع نام بخش دیا. اور ایسا نام بخشا جو سب ناموں سے، ایسا نام بخشا کہ زمین پر کسی دوسرے کا نام ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کی شخصیت کے مطابق پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا اس کے معیار تک آ ہی نہیں سکتا. اس لیے بائبل میں لکھا ہے ایک نام ہے. کتنے نام ہیں؟ ایک نام ہے اور ایک ہی شخصیت بخشی گئی ہے اور وہ یسوع نام ہے. اور رسول کہتا ہے یسوع آج، میں ساتھ رہی، یسوع آج، کل اور اب تک یکساں ہے. ایک شخصیت بخشی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے یسوع مسیح جیسی شخصیت ہے ہی نہیں. دنیا کے اندر کوئی یسوع مسیح جیسی شخصیت نہیں ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح وہ شخصیت اس دنیا کے اندر آئی تو اس شخصیت نے آ کے اعلان کیا. اور یہ اعلان نہ کسی نبی نے کیا، نہ کسی پیغمبر نے کیا، نہ کسی رسول نے کیا. آپ نے آ کے اعلان کیا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں. آپ کو میرا خیال ہے اردو کی آیات آتی ہے، میرا خیال ہے. میں کل ایک جگہ کلام سنا رہا تھا اور میں نے انہیں کہا کہ میں گاؤں کے اندر کلام سنانے گیا تو لوگ بڑے خاموش ہو کے حیرت سے مجھے آ کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ بول نہیں رہے، میرے لگتا ہے تو ہم نے سائتے بلایا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ ہنس کے کہنے لگے کہ اب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی چلیں گے ساتھ.
क्यों भाई साहब? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया में आके ऐलान किया, मैं बाप में से निकला और दुनिया में जरा बुलंद आवाज से, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। और एक और आपको मजे की बात बताऊं, जितना आप ऊंचा बोलेंगे बच्चे वैसे ही चुप हो जाएंगे। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। जरा बच्चों को चुप कराने का ये तरीका है, जरा ऊंचा बोले, मैं बाप में से निकला और दुनिया में, और जिसने मुझे देखा उसने, क्योंकि मैं और बाप दो है, मैं और बाप के दो है, चार है, छह है, मैं और बाप एक है। क्योंकि जो काम बाप करता है वो काम मैं करता हूं। बाप अंधों को आंखें देता है, मैं अंधों को आंखें देता हूं। बाप लंगड़ों को चलना देता है, मैं लंगड़ों को चलना देता हूं। बाप कोड़ियों के कोड़ पाक और साफ करता है, मैं कोड़ियों के कोड़ पाक और साफ करता हूं। बाप मुर्दों को जिंदा करता है और मैं 4 दिन के मुर्दे से कहता हूं लाजर कब्र से बाहर आ जा, वो कफन समेत मेरे कदमों में आ जाता है। जो काम बाप करता है वो काम मैं करता हूं। बाप की सारी अलूहियत की मामूरी मेरे अंदर मुजस्सम होकर सकूनत करती है। अलूहियत की सारी मामूरी मेरे अंदर मुजस्सम होकर सकूनत करती है। और मैं बाप में से निकला और दुनिया के अंदर आया हूं। गोया कई मर्तबा लोग खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते तैयबा पर, उसकी पाक ज़ात पर, उसकी पवित्र ज़ात पर एतराज़ और शकूक और शक की निगाह से देखते हैं, डाउट करते हैं। आपकी ज़ाते तैयबा और आपकी होली पर्सनालिटी पर लोग डाउट करते हैं, शक करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो हकीकत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया के अंदर आने का मकसद यह है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि खुदा मुझ में है और मैं खुदा में हूं। वो दुनिया के अंदर आके लोगों को बता सके कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह आज, कल, बल्कि अब तक। तो ये यकसानियत जो है ये इंसानियत के बस की बात नहीं है। मेरे साथ रहिए, ये यकसानियत, इक्वल रहना इंसान के बस की बात नहीं है और ये किसी नबी पैगंबर के बस की बात भी नहीं है। ये अगर आज भी वैसा, कल भी वैसा, आइंदा दिनों में भी वैसा, उसकी पर्सनालिटी के अंदर जो कुछ है वैसे का वैसा है, ये सिवाय खुदा के कोई और कर नहीं सकता। न माजी में, न मुस्तकबिल में, न हाल में खुदा के अलावा कोई और शख्सियत ये दावा नहीं कर सकती। इसलिए यीशु मसीह की बाबत लिखा गया है वो आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। यकसा उस तरह हो सकता है और आगे जाकर वो बाइबल बयान करती है। थोड़ी देर के बाद मैं अगली बात भी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन बाइबल बयान करती है कि वो बिल्कुल यकसा है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है, उसे सवाल भी नहीं है, उस पर बुढ़ापा भी नहीं आता और वो मरता भी नहीं है। उसे ऊँग भी नहीं आती, उसे नींद भी नहीं आती, क्योंकि वो यकसा खुदा है। और बाइबल बयान करती है कि जब वो यकसा है तो उसने खुद दावा किया, मैं कहां से आया हूं, मैं साथ रहिए, मैं कहां से आया हूं, मैं बाप में से निकला और फिर दुनिया में आया हूं। और फिर फरमाया खुदा को कभी किसी ने, थैंक यू वेरी मच, मैं शुक्रगुजार हूं, आप अच्छा बोल रहे हैं, खुदा को कभी किसी ने नहीं। और एक और बात सुने, बच्चे भी खामोश हो गए, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा पर इकलौता बेटा। आज मैं तो आपकी रहनुमाई करने हूं, कलाम आपको पूरा आता है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की, जो कहां है, जो गोद में है, उसी ने उसको जाहिर किया। इसका मतलब यह है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा और खुदा की जात के अलावा कोई इस दर्जा पर पहुंच नहीं सकता कि वो आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। वो कहता है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, मैं इसलिए दुनिया के अंदर आया ताकि खुदा का ज़हूर बयान कर सकूं, ताकि खुदा की शबी दिखा सकूं, ताकि खुदा की सूरत दिखा सकूं, ताकि खुदा की सीरत दिखा सकूं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम
اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اس کا مطلب یہ ہے جو یکساں ہے اس کا جلال بھی خدا کا جلال ہے, اس کی شکل بھی خدا کی شکل ہے, اس کی صورت بھی خدا کی صورت ہے, اور اس کی سیرت بھی خدا کی سیرت ہے, اور اس کی گفتگو بھی خدا کی گفتگو ہے, اور اس کا اٹھنا بھی خدا کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا بھی خدا کا بیٹھنا, اس کا چلنا بھی خدا کا چلنا ہے. کئی مرتبہ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کفر بک رہا ہے. جب مسیحی ایسی گفتگو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کفر ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا یہ خداوند یسوع مسیح جو یکساں خدا ہے حقیقت کے اندر ہے کیا. وہ خدا میں سے نکل کر دنیا کے اندر آیا. اس کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد جو ہے, میں ساتھ رہیے, اس کے دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے, کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آیا کہ وہ معجزے کرے, اندھوں کو آنکھیں دے, لنگڑوں کو چلنا دے, کوڑیوں کو پاک اور صاف کرے, مردوں کو زندہ کرے. عزیز مسیحی بہنوں بھائیوں, اس تعلیم کو سن لیں اور کان کھول کے سن لیں. یسوع مسیح کا مقصد معجزے کرنا نہیں ہے. یسوع مسیح کا مقصد اندھوں کو آنکھیں دینا نہیں ہے. اس کا کام لنگڑوں کو چلانا نہیں ہے. ہاں, قدیم نبی بھی لنگڑوں کو چلاتے رہے, قدیم پیغمبر بھی اندھوں کی آنکھیں کھولتے رہے, قدیم رسول بھی مردوں کو زندہ کرتے رہے, اور ہڈیاں لگنے سے مردے زندہ ہوتے ہیں نبیوں کے ساتھ. تو یہاں خداوند یسوع مسیح جس کی بابت لکھا ہے کہ وہ آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے, کیوں وہ دنیا کے اندر آ کر رسول اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ یکساں ہے. اس کا کام یہ نہیں ہے, اس کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ وہ لازر کو جا کے نکالے قبر کے اندر سے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یائر کی بیٹی کو زندہ کرے. اس کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ وہ 10 کوڑیوں کو شفا دے. اس کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تمئی کے بیٹے برطلمئی کو جو اندھا فقیر ہے اس کو چنگا کرے. میں یہ ایمان رکھتا ہوں یہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد نہیں, یہ یسوع مسیح کا کام نہیں. یہ تو اس کی قدرت ہے کہ وہ جس سمت گزرے اگر اس کا سایہ پڑ جائے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ اس کی قدرت ہے, یہ اس کی قدرت ہے کہ اگر اس کے پاؤں سے جو مٹی لگی ہے وہ ہوا کے اندر اڑ کر جس مریض کو لگ جائے وہ چنگا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کی اگر سانس جو یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہے, اگر وہ ہوا کسی کوڑی کو چھو جائے اس کا کوڑ چنگا ہو جاتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے, یہ اس کی قدرت ہے کہ کوئی اس کے کپڑے کو چھوئے تو وہ شفا پا جاتا ہے, اور اگر وہ کسی کو چھوئے تو وہ بھی شفا پا جاتا ہے. وہ کسی کو چھوئے تب شفا, کوئی اسے چھوئے تب شفا, کوئی اس کے قدموں پر قدم ہی نہ کرے تب چنگا ہو جاتا ہے. اور جو ہوا میرے آقا کے بدن کو ٹچ کر کے جاتی ہے وہ ہوا کسی کو لگ جائے تو وہ بھی چنگا ہو جاتا ہے. یہ اس کا کام تو نہیں ہے, یہ نبی بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے, یہ کام نہیں ہے اس کا, یہ تو اس کی قدرت ہے. یہ کیا ہے اس کی, میرے ساتھ رہیے, یہ اس کی کیا ہے, یہ اس کی قدرت ہے, اور یہی اس کا اختیار بھی ہے. یہ اس کی قدرت بھی ہے, یہ اس کا اختیار بھی ہے, کیونکہ اس نے فرمایا زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. بول لیں تھوڑا سا, نہیں بولو گے بچے شور کریں گے. زمین اور آسمان کا کل اختیار, زمین کا بھی کل اختیار میرے پاس ہے, آسمان کا بھی کل اختیار میرے پاس ہے, دیدی مخلوقات کا بھی کل اختیار میرے پاس ہے, اور نادیدی مخلوقات کا بھی کل اختیار میرے پاس ہے. اگر میں کہتا ہوں ناپاک روح اس میں سے نکلا تو روح کہتی ہے ہم تمہیں جانتی ہے کہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع مسیح ہے, تو وقت سے پہلے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے آ گیا. بدروہیں جانتی ہے, تھر تھراتی ہے, کانپتی ہے. جن, چڑیلے, بھوت, پریت سارے اس کے آگے تھر تھراتے اور کانپتے ہیں, اور جب اس کا نام لیا جائے تو انہیں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بدن چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کوئی ہیلیلویا کہہ دے, ہیلیلویا کہہ دو, پریکٹس کر لیجئے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب ایسا ہے
तो किताब मुकद्दस में लिखे यीशु मसीह का काम जो है वो क्या है? वो शिफा देना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बैठे रहिए। यीशु मसीह का काम शिफा देना नहीं है। शिफा उसकी कुदरत है, उसका इख्तियार है, उसकी कुदरत है। और वो लाशौरी तौर पर भी टुरे तो शिफा, बैठे तो शिफा, जैसे वो चलता है शिफा वैसे ही हो जाती है, लेकिन उसका काम नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, मेरे साथ ही, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने। मुझे एक बात बताइए, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है सब ने गुनाह किया। कितनों ने गुनाह किया? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। और फिर बाइबल बयान करती है कौन कहता है कि मैंने अपने दिल को पाक कर लिया और अब मैं गुनाह नहीं करूंगा? कोई है जो ये कहे कि अब मैं गुनाह नहीं करूंगा? कभी अफ्रीकन चर्च में गए आप? कालों के चर्च में, अफ्रीकन चर्च में उसे शोर होता है कि नहीं होता? बहुत होता है। तो साढ़े माइक को बर्दाश्त ही नहीं होता। थोड़ा सी इसकी आवाज कर देना, ठीक है? करना को प्रॉब्लम नहीं होगी? प्रॉब्लम होगी? थैंक यू। बैठ जाइए, थोड़ी सी आवाज कर दे। मैंने कल 4 जगह पर 4 कन्वेंशन है कलाम सुनाना है। थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा अफ्रीकन चर्चेस के अंदर, यकीन जानिए, और हमारा मिजाज पाकिस्तान के अंदर तो फर्क था। हम तो जोर जोर से खुदा का कलाम सुनाते और सुनते। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे प्रीचिंग करने दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मैं अर्ज कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह का काम नहीं है। और दूसरी बात, वो आया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। बाइबल बयान करती है कि हम सबों ने क्या किया और खुदा के जलाल से। कौन कहता है कि मैंने अपने दिल को, मेरे साथ रहिए, कौन कहता है कि मैंने अपने दिल को पाक कर लिया और अब गुनाह? हम तो बातों में अक्सर गुनाह, हम बातों में खताएं करते हैं, हम बातों में गुनाह करते हैं। और बाइबल बयान करती है कि हम बाइबल के मुताबिक बातों में खता करते हैं। कोई ऐसा यहां नहीं है जो ये कहे कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया और अब मैं गुनाह नहीं करूंगा। बाइबल बयान करती है कि दाऊद नबी जैसा शख्स ये कहता है, हम ज़बूर गाते हैं, मिन्नू विच गुनाह दे, मिन्नू विच गुनाह दे। और पालूस कहता है जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो तो मुझसे, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मैं कर लेता हूं। इसका मतलब यह है कि जलीलुल कदर नबी दाऊद, रसूल आज़म पालूस रसूल और बाकी अनबिया और मुरसलीन ये कह रहे हैं हम गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़े हैं, हम बदी की हालत में मां के पेट में पड़े हैं। और आप जो यहां बैठे हैं, मैं और आप जितने हैं, कोई यहां हाथ उठा के कहे कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कभी गुनाह नहीं किया? कोई है? कितनों ने गुनाह किया? बुलंद आवाज से, कितनों ने गुनाह किया? सब ने गुनाह किया। और फिर खुदा को कभी किसी ने, खुदा को कभी इस वजह से जनाबे मूसा कहते हैं ऐ खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा। खुदा कहता है इंसान मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि जिस दिन वो देखेगा वो मर जाएगा। इसलिए कि उसके तुखम के अंदर गुनाह है, उसके जीन्स के अंदर गुनाह है, उसके डीएनए के अंदर गुनाह है जो ट्रांसफर अगली नस्ल में हो जाता है, गुनाह पाया जाता है। यीशु मसीह जो यकसा है वो मौत से करने नहीं आया, वो शिफाएं देने नहीं आया, ये उसकी कुदरत कामिला है, लेकिन वो करने जो काम आया है वो है इब्ने आदम खोए हुओं को, मेरे साथ रहिए, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। बाइबल बयान करती है ना सिर्फ ये बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने एलानिया ये बयान किया, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ठीक है, थैंक यू, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, आज आपका टेस्ट भी है साथ साथ, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा क्योंकि राहत और जिंदगी मैं हूं, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ बीमारियों के अंदर फंसे हुए लोगों, ऐ बदियों के अंदर फंसे हुए लोगों, ऐ बदकारियों के अंदर फंसे हुए लोगों, ऐ
गुनाहों के अंदर फंसे हुए लोगों, और जो लोग कई मर्तबा गुनाह नहीं करना चाहते और वो फिर भी कर लेते हैं, ऐसी आदत के अंदर, सीक्रेट सिन के अंदर फंसे हुए लोगों, सब मैं तुम्हें आराम दूंगा क्योंकि राहत और जिंदगी मैं हूं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है, तुम्हारी जाने राहत पाएगी। और बाइबल बयान करती है, खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने दुनिया के अंदर बख्श दिया, दे दिया, और उसके देने का मकसद, उसके बख्शने का मकसद, उसकी इंसानियत का मकसद सिर्फ यह था कि इंसान कुचला हुआ है, इंसान गुनाह के सबब से बिगड़ चुका है, इंसान बदी के सबब से खुदा से दूर हो चुका है। इसलिए यीशु मसीह को भेजा गया, और यीशु मसीह ने आके चैलेंज किया, और ये चैलेंज आके किसी और ने नहीं किया, किसी और ने आके चैलेंज नहीं किया, क्योंकि नबी दाऊद कहता है कि मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा, मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। लेकिन जब मेरा खुदावंद यीशु मसीह, आपका खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया, उसने आके ऐलान किया, कौन है जो मुझ में, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, बेगुनाह गुनहगारों को बचा सकता है। अंधा अंधे को राह, मैं साथ रहिए, अंधा अंधे को राह, तो गुनहगार को बचा सकता है? कौन गुनहगार को बचा सकता है? जो ये कहे, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, वो जो पहले इब्तिदा में खुदा के साथ था, जो खुदा का कलीमा है, जो खुदा का कलाम है, जब वो इस दुनिया में आया, उसने आके इंसानियत के जब गुनाह अपने ऊपर लिए, तब बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़िए, अगले इब्रानियों का खत के अगली आयत पढ़ेंगे तो आप लिखा है कि उसने अपने खून से हमें छुड़ाया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब वो सारा कुछ कर लिया, उसने इस दुनिया में आया, आकर आपके और मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, सलीब पर चढ़ गया। मैं साथ रहिए, सलीब पर गुनाहों को लेकर चढ़ गया, और सलीब के ऊपर हमारा कफारा अदा किया। और जैसे हमारा कफारा अदा कर दिया, तो आगे बाइबल की बड़ी खूबसूरत बात है, जैसे इंसानों का कफारा अदा किया, इससे पहले कि यीशु मसीह कफारा अदा करे, दीन यहूद किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे साथ रहिए, दीन यहूद किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, यहां तक कि वो नबियों को नहीं माना, उन्होंने नबियों का कत्ल किया, पैगंबरों का कत्ल किया, रसूलों का कत्ल किया, किताबों को फाड़ा, तौरात को फाड़ा, ज़बूर को कई मर्तबा जाया किया, आग के अंदर जलाया, नबियों की कत्ल किए। उस कौम को खुदा पैगाम देता है, सुनिए आखिरी बातें हैं, खुदा उस कौम को पैगाम देता है, और खुदा कलाम करता है, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को, मेरे साथ रहिए, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत जो ऊपर या नीचे या जमीन के, तू उसके आगे सिजदा, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा, मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर खुदा हूं, और मैं अपने इक्वल, अपने बराबर, अपने तख्त पर, अपने साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा। मैं साथ रहिए, इसका मतलब यह है कि यहूदी खुदा के अलावा किसी को सिजदा करना पसंद, और खुदा अपने बराबर किसी को लाना पसंद नहीं करता है जी। खुदा अपने बराबर किसी नबी को लाना पसंद करता है कि कोई पैगंबर मेरे सामने आए, कोई रसूल मेरे मुकाबले में आए, कोई वली मेरे मुकाबले में आए, कोई शख्स मेरे मुकाबले में आए, खुदा पसंद करता है कि उसके मुकाबले में आए। खुदा पसंद करता है कि किसी नबी को सजदा करे, खुदा पसंद करता है किसी रसूल को सजदा करे, खुदा पसंद करता है किसी बड़ी शख्सियत को सजदा करे। लिखा है खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर। किसको सजदा कर? मेरे साथ रहिए, खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसकी इबादत कर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए, मेरे साथ रहिए, मैं आखिरी बातें कर रहा हूं, जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए तो सलीब के ऊपर जाकर इंसानों का कफारा दिया। जब इंसानों का कफारा दे दिया तब रसूल बयान करते हैं, ये आखिरी आयत है, तब रसूल बयान करते हैं, रसूल कहते हैं कि खुदा ने उसे सर बुलंद किया, लेकिन इससे पहले कि खुदा उसे सर बुलंद करे, उसने खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के
मुशाबा हुआ और इंसानों के मुशाबा हुआ और मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और खुदा ने भी उसे सर बुलंद किया। क्या किया? खुदा ने भी उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे है, उसके आगे झुके और हर जुबान ये इकरार करे कि यीशु ही खुदा है। हर जुबान इकरार करे कि यीशु ही वो पहले भी यकसा था, वो पहले भी कहता था कि मेरे अलावा किसी को सिजदा नहीं करना, और अब भी वो अपने बेटे को दुनिया में भेज कर कहता है इसके अलावा भी अब किसी को सिजदा नहीं करना, क्योंकि जो पानियों की सतह पर मैं जुम्बश करता था, आज वो तुम्हारे दरमियान मुजस्सम होकर आया है, आज वो तुम्हारे दरमियान है। और ये पहले भी एक जैसा था। खुद बाइबल में लिखा यीशु आज, कल, बल्कि अब तक कैसे है? यकसा है। वो पहले भी खुदा है, वो आज भी खुदा है, वो कल भी खुदा है, और अब तक वो क्या है? खुदा है, यकसा खुदा है। और वो जो कहता है वो करता है। आप ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा है? आप ईमान रखते हैं कि उसके अंदर तब्दीली नहीं है? आप ईमान रखते हैं कि वो कफारे के सबब से, खून के सबब से, निजात के सबब से उसको इतना सर बुलंद किया गया कि खुदा ने कहा तू आज मुझसे निकला और आया है, आज तू मुझसे निकला और दुनिया में आया है। कफारे के सबब से यीशु मसीह खुदा है, और उसकी खुदाबंदी, अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सकूनत करती है। तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियारात, सब कुछ उसके लिए और उसके वास्ते बनाया गया है। इसलिए वो आज भी वैसा है, वो कल भी वैसा है, और वो अब तक वैसा रहेगा। और उसने फरमाया तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो तुम्हें आके अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां मैं यकसा हूं। मैंने जो वादा किया है वो पूरा है। मैं जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। लेकिन फिर फरमाया अब तो थोड़ी देर के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी जगह पर तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, जो कब तक तुम्हारे साथ रहेगा? जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, और वो तुम्हारे अंदर होगा। ना सिर्फ साथ होगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा, और तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा और तुम्हारी तरबियत करेगा। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह आज भी वैसा ही है, जैसे वो पहले मौजज़े करता था, आज भी मौजज़े करता है। आज भी वो अपनी कुदरत कामिला से कामल काम करता है। बाइबल में लिखा है कि मैंने जैसे बताया यीशु का काम क्या है? मौजज़े करना। यीशु का काम है गुनाहों से रिहाई देना। और मैंने दरमियान में मैसेज के ये बताया था कि यीशु मसीह अगर चल रहा है तो चलते चलते अगर कोई उसकी पोशाक को छू ले, अगर कोई उसकी पोशाक को छुए तो क्या होता है? अगर वो किसी को छुए तो आप ईमान रखते हैं यीशु है यहाँ? आपका ईमान है यीशु है? बुलंद आवाज से इधर उधर देखना बंद करके मेरे साथ, ये आखिरी बात है। आपका ईमान है यीशु यहाँ है? क्योंकि यीशु का वादा क्या है? जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो मैं उनके दरमियान, और वो मौजूद होकर सिर्फ बैठता है। लिखा है जो तूने 7 चिरागदान देखे वो 7 कलीसियाएं हैं, और उनके अंदर जो फिरता है, जो आदम जात सा है, जिसके हाथ दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं, जो उन कलीसियाओं और उन चिरागदानों के अंदर फिरता है। मेरा ईमान है ये चिरागदान, ये कलीसिया, इसके अंदर खुदावंद यीशु फिरता है। और जब वो फिरता है तो अगर कोई छू ले, अगर वो किसी को छू ले तो आपका ईमान है ऐसा हो सकता है? आपका ईमान है? उसने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक, फिर अद्धी आयत खा जाते हो।
बाइबल ठीक पढ़ा करें। शाबाश। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो आज यहां है। आइए खड़े हो जाए, आइए अपनी आंखों को बंद कर ले, आइए खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद कर ले। अगर वो हमारे साथ है तो वो यकसा है। यरूशलेम के अंदर से जब वो गुजरता था तो मौज से होते थे, क्योंकि यीशु आज, कल, बल्कि अब तक। जब पौलुस रसूल ने बात की तो उसने कहा कि यीशु आज यकसा है। जब पौलुस रसूल ने बात की कल की तो वो कल ये है, कल जो आज है हमारी, पौलुस की कल आज हमारी है और हमारी आज दूसरे लोगों के लिए कल हो जाएगी। इसलिए आज यीशु यकसा है। वो यरूशलेम के अंदर से गुजरता था, अंधे देखते थे। वो यरूशलेम के अंदर से गुजरता था, लंगड़े चलते थे। वो यरूशलेम के अंदर से गुजरता था, कोड़ी पाक साफ होते थे। यरूशलेम के अंदर से या गांव शहरों के अंदर से गुजरता था, मुर्दे जिंदा होते थे। और ऐसी बातें बहुत सी है जो इंजील में नहीं लिखी गई, लेकिन हमारा ईमान है कि मेरे आका के साए पड़ने से मुर्दे जिंदा हो जाते थे। शागिर्दों के बदनों को कपड़े लगाकर लोग बीमारों पर रखते थे तो वो चंगे हो जाते थे। जिस नाम से वो कपड़े रखते थे, जब वो यहां मौजूद है तो कितने बड़े काम क्यों ना हो। आइए अपनी पोशीदा बीमारियां यीशु मसीह को दें। आइए अपने पोशीदा गुनाह भी यीशु मसीह को दें, क्योंकि वो कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, अपने गुनाह मुझे दे दो। कई मर्तबा हमारे कुछ ऐसे सीक्रेट सिन होते हैं, कई मर्तबा हमारी ऐसी कमजोरियां होती हैं जो हम लोगों को बयान नहीं कर सकते। यीशु मसीह आज आपकी कमजोरियों को लेने आया है। यीशु मसीह आज आपके गुनाहों को लेने आया है। यीशु मसीह आज आपकी बीमारियों को लेने आया है। यीशु मसीह आज आपके तमाम तर नजासत को लेने आया है, क्योंकि वो यहां से गुजर नहीं रहा। वो जब गुजरता है तो 12 बरस की रोगन जिसे खून जारी है वो उसे छूती है तो चंगी हो जाती है। यीशु से गुजरता है। यीशु आज गुजर नहीं रहा, वो आपके सामने ठहरा हुआ है, वो आपके सामने मौजूद है, इस हॉल के अंदर मौजूद है, इस जगह के अंदर मौजूद है। आओ छुए यीशु को, या उसे मौका दे कि वो आपको छुए, या आप उसे छू लें, या उससे मौका दे कि वो आपको छुए। अगर वो आपको छुएगा तब भी आप चंगे हो जाएंगे, अगर आप उसे छू लेंगे तब भी आप चंगे हो जाएंगे। इसलिए मैं खुदावंद का खादिम होते हुए खुदा मुझे पाकिस्तान से इस जगह पर लेकर आया ताकि मैं इस बात की आगाही दे सकूं कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियां गुनाह के अंदर पड़ी है, जिनकी जिंदगियों के अंदर सीक्रेट गुनाह है, जिनकी जिंदगियां बदी के अंदर घुसर रही है। खुदा आज उन्हें निकालना चाहता। मैं उन्हें सामने नहीं बुलाऊंगा, मैं उन्हें सामने नहीं बुलाऊंगा। मैं ये कहूंगा जहां आप हैं दुआ करें आप। अगर आज आपसे वो गुनाह पर गलीबा नहीं ना पाया जाता तो आप गुनाह उठा के यीशु के कदमों में ले आए। और मैं आपको बात बताऊं, एक औरत एनफील्ड में पकड़ी गई। यीशु मसीह ने कहा दुनिया ने तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। उसने कहा सब चले गए, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा जब मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह है तो पेश कीजिए यीशु को, पेश कीजिए यीशु को। कोई इल्जाम आप पे नहीं लगेगा, बच जाएंगे आप, महफूज हो जाएंगे आप, क्योंकि वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो बीमार से कहता है उठ और अपनी चार पहिए उठा और अपने घर को चला जा, और फिर कहता है जा तेरे गुनाह मुआफ हुए। वो आपके गुनाह मुआफ करना चाहता है, वो आपकी बदियां मुआफ करना चाहता है, वो आपकी बदकारियां मुआफ करना चाहता है। वो मफलूज की तरह आपको कहता है जा तू अपनी बीमारी से छूट गया। वो 12 बरस की औरत जिसे खून जारी था उसकी पोशाक को छुआ, वो चंगी हो गई। वो 18 बरस की औरत जो कुपड़ी हो चुकी थी, खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस पर नजर की तो इंजील में लिखा है
वो अपनी कमजोरी के अंदर फंसे। हम भी अपनी कमजोरियों के अंदर फंसे हुए हैं। हमारे अंदर ऐसी कमजोरियां हैं पोशीदा, जिसने हमें फंसा लिया है और हमें यीशु से बहुत दूर ले गई है। खुदा आज आपसे कलाम करता है। वो पोशीदा बीमारियां, वो पोशीदा कमजोरियां, वो पोशीदा गुनाह मेरे हुजूर लेकर आ। तूने आज तक वो पोशीदा गुनाह छुपाए हैं। दाऊद नबी जैसा नबी कह रहा है, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई तो आप और मैं कौन है फिर। दुआ करें, सारे दुआ करें। दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करना शुरू करें। अपनी बीमारियों के लिए दुआ करना शुरू करें, अपनी कमजोरियों के लिए दुआ करना शुरू करें, अपनी कमजोरियों के लिए दुआ करना शुरू करें। बुलंद आवाज से दुआ करें, क्वायर सारी दुआ करें, प्रस्ताव दुआ करें और प्रस्तुश और दुआ जारी हो जाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब रास्तबाज दुआ करते हैं तो खुदा बहाल कर देता है। आप जो इस वक्त अपने गुनाहों के अंदर, पोशीदा बीमारियों के अंदर, पोशीदा गुनाहों के अंदर, जो शायद आपकी माँ भी नहीं जानती उस गुनाह को, आपकी बीवी उस गुनाह को नहीं जानती, आपका शौहर उस गुनाह को नहीं जानता, आपकी बेटी उस गुनाह को नहीं जानती, आपका बेटा उस गुनाह को नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है। और आज उसने मेरे मुंह में इस कलाम को रखा है कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पोशीदा गुनाहों के अंदर फंसे सिसकियां ले रहे हैं। जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं, दुआ करना शुरू करें। जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं, शर्माए ना, झिझके ना, बुलंद आवाज से दुआ करें। बुलंद आवाज से लिखा है, बाला खाने के अंदर जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो वो बाला खाना हिल गया। बुलंद आवाज से गैर जुबानों में दुआ करें, जो ने खुदा ने तौफीक दी है और जिन्हें खुदावंद ने तौफीक दी है दुआ करें। और जिनके आज मुंह बंद है, खामोश है, वो दुआ नहीं कर रहे, खुदा उनकी जुबानों को भी आज खोलेगा। इकरार करें, इकरार करें अपने उन सीक्रेट सिंस को खुदा के हुजूर लेकर आए। खुदा कलाम कर रहे कि मैं आज कल बल्कि अब तक भी अच्छा हूँ। जब मैं यरूशलेम के अंदर था तो मैं ये कहता था, जा तू इस बीमारी से छूट गई। मैं कहता था तू चंगा हो गया। खुदावंद यीशु कहता था, जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। खुदावंद यीशु कहता था, फिर गुनाह ना करना, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा। खुदावंद यीशु कहता था, तेरे पास कोई नहीं है, तो वो मफलूज कहता, मेरे पास कोई नहीं है, सब छोड़ गए हैं मेरे गुनाहों के कारण, गुनाहों के सबब से। यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई नहीं है तो उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा, और फिर जा तेरे गुनाह भी मुआफ। बुलंद आवाज से दुआ करो। खुदावंद मेरे दिल में इस बात को डाल रहा है कि इस दुआ के दौरान जो लोग इस बात को खुदा के हुजूर रखे हुए हैं कि खुदावंद आज उनके पोशीदा गुनाहों से उन्हें शिफा देगा, पोशीदा गुनाहों को धोएगा और उन्हें उम्मीद देगा, उन्हें शादमानी देगा, उनके दिलों को शादमानी से भर देगा। सिर्फ आपको मुंह खोलने की जरूरत है, आपको कहने की जरूरत है, ऐ खुदा के बेटे, मैं अपने इन पोशीदा गुनाहों पर कई मर्तबा गालिबा पाना चाहता हूँ, इन गंदी आदत पर कई मर्तबा गालिबा पाना चाहता हूँ, नहीं पा सका, लेकिन आज तू आजकल बल्कि अब तक यकसा है, तू अंदरून को जानता है। मेरे आंसू तेरे हुजूर बहते हैं, मेरी आंखें तेरे हुजूर निकलती है। आज मुझे इस पोशीदा बीमारी से छुड़ा, आज इस पोशीदा गुनाह से मुझे छुड़ा, आज इस पोशीदा गुनाह से जो कोई नहीं देखता, सिर्फ तू देखता है, कोई नहीं
नहीं देखता इस गुनाह को, तू देखता है। छुड़ा ले इस गुनाह से, रिहाई दे दे इस गुनाह से। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पोशीदा बीमारियों के अंदर भी है, जो अपनी बीमारियां किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। खुदा उनसे भी कलाम करता है, तू अपनी बीमारी से छूट गई, तू अपने बीमारी से छूट गया। बुलंद आवाज से आइए, अपने हाथों को उठाइए, सारे अपने हाथों को उठाएंगे और दुआ करेंगे। जिस तरह रूल कुद्स आपको आपकी मदद करता है, जिस तरह रूल कुद्स आपकी मदद करता है, ये मत देखिए कि आप क्या है, ये भी ना देखिए कि कौन गैर जुबानें बोल रहे हैं, कौन किस तरह की दुआ कर रहा है, ये मत देखिए कि आप आपका स्टैंडर्ड क्या है, ये ना देखिए कि मैं दुआ करूंगा, मेरा स्टैंडर्ड ये है, मैं ऊंची बोलूंगा, मेरी ईगो खत्म हो जाएगी। खुदा आज हर तरह की ईगो को, अना को आप अपनी कुदरत से नीचे करना चाहता है, नीचे करना चाहता है। बुलंद आवाज से प्रस्तुत करते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे बुलंद आवाज। खुदावंद कुदरत वाला खुदा है। आज खुदा यहां मेरे दिल में इस बात को डाल रहा है कि कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो रूहुल कुद्स के मुतमन्नी हैं और बड़ी देर से दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद हमें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दे, हमें रूहुल कुद्स अता कर। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो रूहुल कुद्स के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा वो यहाँ सामने आ जाए जो रूहुल कुद्स के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद तेरा रूहुल कुद्स मेरी मदद करे, मुझे टच करे, मुझे छुए, मुझे बदले। जो रूहुल कुद्स के लिए शर्माए ना, आंखें ना खोले, दुआ करे, हाथ उठाए रखे, प्रस्तुत होती रहे, दुआ होती रहे बुलंद आवाज से। जो रूहुल कुद्स के लिए है वो आगे सामने आ जाए, जो रूहुल कुद्स के मुतमन्नी है। बुलंद आवाज से नौजवान भाइयों मेरा साथ दीजिए, बुलंद आवाज से। जो ऑर्गन पर है मेहरबानी करके दुआ करें, ऑर्गन पे आप दुआ करें। आपकी दुआ से बड़ी बरकत आएगी, आपकी प्रस्तुत से बड़ी बरकत आएगी। आपके बोलने से जुए टूटेंगे, आपके बोलने से बंधन टूटेंगे, आपके बोलने से रिहाई आएगी, आपके हाथ उठाने से बरकत आएगी। बुलंद आवाज से अपने हाथों को उठाए और दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, बुलंद आवाज से दुआ करें। हालेलुया। कहिए खुदावंद तेरा रूहुल कुद्स मेरी मदद करे, खुदावंद तेरा रूहुल कुद्स मेरी मदद करे। जो लोग अपने गुनाहों के लिए, पोशीदा अमराज के लिए दुआ कर रहे हैं वो दुआ करते रहे। इसके बाद मैं उनके लिए दुआ करूंगा, इसके बाद मैं उनके लिए दुआ करूंगा। लेकिन रूहुल कुद्स खुदा आज यहाँ अपनी कुदरत कामिला के अंदर है, उसकी मूवमेंट कसरत के साथ है, उसका अबर यहाँ पर छाया हुआ है, वो अपने जोरे बासु के साथ यहाँ मौजूद है। वो बहुतों को यहाँ उठाने वाला है, वो बहुतों को यहाँ से बरकत देने वाला है, वो बहुतों को अपने जलाल के लिए तैयार कर रहा है। और री बाबा 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 संतोषी रखा बाबा और री लखा बाबा सोथो खोरी अलावा सीरा और री बी 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 बड़ा संतो खोरो बाबा और री अलावा बाबा ये दुआ करे बाबा बाबा से। खुदा तेरे रूहुल कुद्स की कुदरत जोर से, तेरे रूहुल कुद्स की कुदरत जोर से इस नौजवान पर ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए तेरी कुदरत और जोर से। और खुदावंद इसके पूरे बदन पर रूहुल कुद्स की आग लगे, 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 रूहुल कुद्स की आग, रूहुल कुद्स की आग, रूहुल कुद्स की आग, रूहुल कुद्स की आग पूरे बदन खुदावंद इस नौजवान बेटी पर तेरे रूहुल कुद्स की कुदरत कसरत से आए, कसरत से आए, कसरत से आए। और निकाला बाबा 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 और ये बाबा 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 से और निकाला बाबा सीखो बाबा सोच से तेरी कुदरत और तेरा इख्तियार touch in Jesus name. Hallelujah. Oh mama yalara sinta talara sonto dolorosika. Yes, touch. Sadua kare. Hallelujah. Praise and worship him in Jesus name. Hallelujah. Mama yalara sinta talara sonto dolorosika. Oh yes.
دعا کروانا چاہتے ہیں تو آگے آ جائے پلیز, آگے ہو جائے. ہاللویا. سنتو تو سیکھا کھا ماما یالا سنتا بابا یالا سیکھا کھا سیکھا. او ماما یالا سنتا ہاللویا ہاللویا. کسی کی کمر میں درد ہے وہ آگے آ جائے پلیز, یسوع کے نام میں. ہاللویا یسوع کے نام میں. جس کسی کی کمر میں درد ہے وہ آگے آ جائے یسوع کے نام میں. ہاللویا پریز جیسس پریز جیسس. جس کسی کی کمر میں درد ہے وہ سامنے آ جائے. ہاللویا in the name of Jesus. Touch in Jesus name. In the name of Jesus. Hallelujah hallelujah hallelujah. Touch in Jesus name. یسوع کے لہو کو پکاریں. Yes. Oh, yes. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes. یسوع کا لہو بڑی قدرت والا ہے, بڑی عظمت والا ہے, بلکہ روحیں بچانے والا ہے. ہاللویا. یسوع کا لہو بڑی قدرت والا ہے, بڑی عظمت والا ہے, بلکہ روحیں بچانے یسوع کے لہو میں شفا لے, یسوع کے لہو میں شفا لے, یسوع کے لہو میں شفا لے. Touch Holy Spirit, touch. Fill every one of us right now. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Oh, mama, یسوع کے لہو yes. یسوع کے لہو کو ہمیں تیری حضوری ملے, ہمیں تیری حضوری ملے, تیرے روح کی معموری ملے, تیرے روح کی معموری ملے. اور دنیا سے کیا چاہیے, اور دنیا سے کیا چاہیے, تیرے روح کا مسا چاہیے. ہاللویا. تیرے روح کا مسا چاہیے. ہمیں دنیا کی دولت سے کیا, ہمیں دنیا کی دولت سے کیا, ہمیں دنیا کی شہرت سے کیا, ہمیں دنیا کی شہرت سے کیا. تو ہی تو ہے خدا چاہیے, تو ہی تو ہے خدا چاہیے. تیرے روح کا مسا چاہیے, تیرے روح کا مسا چاہیے. آج لگڑے چلے یسوع,
यीशु आज अंधे भी देखें यीशु तेरा तख्त यहाँ चाहिए तेरा तख्त यहाँ चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए आज तेरी शिफा चाहिए आज तेरी शिफा चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए तेरी नजात देशों दे विच उम्मीदे हो मेरी जान तेरी नजात देशों दे विच उम्मीदे हो मेरी जान तेरे ही को
कुदरत है, दिल को बदलने की ताकत है, ओ खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है, तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे
In the name of Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Praise. जो बाहर के लोग हैं वो आगे आ जाए, एक बार आप सबके लिए दुआ करेंगे तो वक्त काफी हो गया है। अभी लास्ट चांस है, जो लोग दुआ कराना चाहते हैं जो सामने आ जाए, सबके लिए दुआ करेंगे भाई साहब, उसके बाद फिर खत्म करेंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। क्योंकि जो गाने वाले हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको चांस नहीं मिला, और जिनको लोगों को चांस नहीं मिला दुआ कराने के लिए, सामने आ जाए, उनके लिए दुआ करेंगे। प्रेज जीसस। आसमानी खुदावंद यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस माइटी मूव के लिए, तेरे रूह खुश के लिए, जो यहाँ खुदरत के साथ ठहरा तो लोगों की जुबानों को बदला, तो रूह खुश के बसा की फरमानी बख्शी, तेरा शुक्र करते हैं। तो लोगों को पोशीदा बीमारियों से छुड़ा, तो लोगों को पोशीदा गुनाहों से आजाद किया। अब बाप जितने लोग बरकत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं या अपनी मुश्किलात मुसीबत लेकर तेरी पाक बारगाह में हैं, तेरा खादिम होते हुए यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, हर तरह की इब्लीस की कुव्वत, बीमारी का असर और बदी की कुव्वत बदन से जाए, और रूह कुश की आग इन बदलों पर ठहरे, और बरकत का दरिया इनके लिए यीशु के नाम में। मेरा ईमान है कि आज खुदा के कलाम के वसीला से हम सब ने बरकत पाई है। हालेलुया। भाई हम भाई साहब के लिए, डॉक्टर जमील नासिर के लिए हम तालियां बजाएंगे कि खुदावंद ने इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोगों ने शिफा भी पाई है। और अभी जो वक्त काफ़ी गुजर चुका है, बच्चों को भी भूख लगी है, और हमारा ताकत था कि हम इसको टाइम पर ख़त्म करेंगे। और अभी आखिर में एक गीत होगा, और इसके बाद फिर मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे बुजुर्ग हैं अंकल अनायत गिल, वो आखिर में हमारे लिए बरकत की दुआ करेंगे, और प्रोग्राम रखा चलूँगा। इसके बाद फिर हम नीचे हॉल में जाएंगे, वहाँ खाना होगा, और खाने का अच्छा इंतज़ाम किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ ताबन करेंगे ताकि हम अच्छी तरीके से बैठकर वहाँ खाने पर फellowship कर सकेंगे। अभी हम आखिर में गीत गाएंगे, उसके बाद फिर दुआ करेंगे।
दरबार